Flying Officer Ajit Deshpande, Flying Officer Manoj Bhartoj. Nishant Khanduja, recently been seen in the movie Fighter, studied aerospace. You know, it is so difficult to study that, and you shifted from IIT Mumbai to acting and producing. जब आपने अपनी मम्मा को बताया कि आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, उनका पहला रिएक्शन क्या था? जेम्स बॉन्ड करना, अगर इंडिया में अगर जेम्स बॉन्ड बनती है तो भी मैं करूंगा. आई विल ट्राई फॉर हॉलीवुड. आपको भी अपने बारे में लगता होगा कि यार आई एम टू विटी, क्योंकि आपका दिमाग चलता होगा. सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मेरे को होता है शादी को लेके. लोग अपने पार्टनर को लेके, जिसको वो डेट भी करे ना, उसको लेके भी वो लोग श्योर नहीं है कि उससे शादी करनी है नहीं करनी है. आई थिंक सारे छोटे शहरों में जलेबी सुबह मिलती है. हाँ, शाम को 4 बजे के बाद आपको सिर्फ इमरती मिलेगी. बट दे डोंट नो कि एक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. साइंस नहीं है. एंड इतना फोकस. सो सिमिलरली जब आप किसी भी आर्ट फॉर्म को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट. अब यहाँ पे क्राफ्ट क्या हो सकता है? इन एक्टिंग योर प्रोडक्ट इज योर बॉडी. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Today we delve into the journey of a remarkable individual whose passion for both engineering and the arts has led to a unique, inspiring career. Nishant Khanduja, recently been seen in the movie Fighter, starring Nishant Khanduja, Hrithik Roshan, Deepika Padukone, and Anil Kapoor, and many, many other stars in the movie. Nishant is a shining star in the universe of the Indian cinema and is growing each day. Nishant, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you, ma'am. Thanks a lot. And this was a very lovely introduction. You know, I felt proud of myself actually. The way you said it, it felt really good. So nice. Thank you so much. Okay. Nishant, to start with, सबसे पहले आप हमारे viewers को अपने बारे में बताइए. Tell your journey in short and what motivated you to shift. You know, you studied aerospace. You know, it is so difficult to study that, and you shifted from IIT Mumbai to acting and producing. Let's hear. Okay, so the reason is very simple. While I was pursuing engineering, I was exploring every single field which is there in aerospace engineering. So you might have heard, you know, let's say if someone is doing mechanical engineering, so that mechanical engineering guy will be having some niche. Maybe let's say in designing or maybe structures. So similarly, in aerospace, we had 5 daughter branches. Either you can choose, let's say, propulsion, controls, aircraft design, structures, computational fluid dynamics. I tried all of them and I realized I can secure good marks. I did my internship with ISRO also, Airbus as well. But it was very clear in my mind, I can secure marks, but I'll not be happy. Though aerospace engineering was my choice at one point of time, back in 2009, when my parents were telling me, beta, opt computer science, take mechanical. Because for them, because my parents, they belong to a very small city, Bharatpur. So when I decided, you know, I'll be taking aerospace, and the colleagues of my mother, they told her, ma'am, ab to aapka beta India se bahar gaya. And I'm the only son. They literally got scared कि भाई ये तो बाहर चला जाएगा, हम क्या करेंगे. तो अब मैंने जैसे बताया कि हाँ, उस वक्त मेरे लिए फेवरेट था, बट बैक इन 2013 and 14 when I was about to graduate, I realized कि यार मुझे मजा नहीं आएगा. Then someone told me, you know, why don't you try acting? And I explored. I took, let's say, a very small workshop, and it was very interesting. Someone who is a science student, and he gets you know, something to read and think about, you know, how you can perform those lines. Everyone has different interpretations. It sounded interesting to me, and I was like enjoying. It was not feeling any pressure. Just go there and enjoy yourself. That's it. And I was like, man, I need to do this. So
I understand that you are come from a very educated background. You just said your mother's colleagues. Now, जब आपने अपनी मम्मा को बताया कि आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, उनका पहला रिएक्शन क्या था? अनपढ़ वाले काम करने जा रहे हैं, ये रिएक्शन था उनका। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि बेटा तूने 5 साल मेहनत करी, तू इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, नाउ यू आर अगेन गोइंग बैक टू स्क्वायर जीरो। अगर तेरे को एक्टिंग करनी थी तो 5 साल पहले करता ना, तूने 5 साल हम लोगों को वेट क्यों करवाया? I can totally relate to this, being a single child and educated. I said, I'm the only son. I didn't say I'm a single child. Oh, So I get it I, now. Okay. I have a younger sister also. Okay, okay. Wonderful, wonderful. Okay, so since we are talking about your acting, your your career as an actor, tell me what kind of roles you look up to, you would like to play, and what any particular character in your mind that you feel कि मुझे ये वाली तो करना ही करना है. Honestly saying, मुझे ना जेम्स बॉन्ड करना, अगर इंडिया में अगर जेम्स बॉन्ड बनती है तो भी मैं करूंगा, और अगर नहीं भी बनती है आई विल ट्राई फॉर हॉलीवुड। One day I need, I want to be there playing James Bond because I relate to that character a lot in my life. Or whenever there is any audition where you see a strong man who is very, who is wise also, very smart looking, I relate to that somehow. Whenever I get these sort of auditions, I crack them always. I get shortlisted. Obviously, there are other things also. That's why those projects, they don't materialize, but I get shortlisted. So basically, my performance always get noticed. This is happening. I totally believe what he's saying कि इनका परफॉर्मेंस नोटिस होता है, क्योंकि मैंने अभी तक फाइटर देखी नहीं है। मैं आज रात को ही जाऊंगी देखने को, लेकिन सारी जगह प्रोमोज में वो बर्डी कुछ कुछ आ रहा है। बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में एंड द मूवी। सो ये जो कैरेक्टर है बर्डी, सो बर्डी फ्लाइंग ऑफिसर है, और ये इंडिया का बेस्ट पायलट है। सो ये जो फाइटर फिल्म है, ये इसमें इंडिया के 8 बेस्ट पायलट्स हैं, एक टीम बनी है, एंड दे ऑल आर वर्किंग इन वन यूनिट कॉल्ड एयर ड्रैगन। और ये बनी है एक इमरजेंसी यूनिट है। इफ एनीथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट आवर कंट्री, सो दे विल बी देयर टू असिस्ट। ये जो हमारा बॉडी कैरेक्टर है, ही इज वेरी फन लविंग, मुंह फट भी है ये रुकता नहीं है किसी चीज को कहने से। और क्योंकि छोटा है, बिकॉज बाकी जो टीममेट्स हैं वो मुझसे सीनियर हैं, तो उनके सामने थोड़ा झुक के रहता है, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे अपने पंचेस को रिलीज करता जाता है। सो ये हमारा कैरेक्टर है बॉडी। बाकी नेक्स्ट जब भी फिल्म बनेगी फाइटर 2, व्हाट वी आर होपिंग राइट नाउ, उसमें आप लोग ज्यादा देख पाएंगे, ज्यादा डेप्थ देख पाएंगे इस कैरेक्टर की। Right now, these are the things what you can look up to for Birdie. So tell us about your favorite punchline Birdie say, you being as Birdie. Okay, sir, ये इश्क वाले लव के बारे में तो सुना है, ये प्लीज वाली स्माइल क्या होती है? हम बहुत से स्टार्स को अपने शो पे बुलाते हैं, और जब उनको बोलो पंचलाइन बताओ तो वो सोचते हैं और आपको याद था, विच इज अमेजिंग। पंचलाइन मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मैंने इम्प्रोवाइज की थी सेट पे। सो हो ये रहा था, सीन चालू है, और आप जब आज जाके देखेंगे तो करण सिंह ग्रोवर जो है वो ऋतिक रोशन को बोलता है, अरे मैंने इनको वो बताया, क्या कहते हैं, जो एकेडमी में हुआ था ना, तेरी प्लीज वाली स्माइल, एंड द एंटायर कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, अरे प्लीज वाली स्माइल क्या होती है? एंड अब्रप्टली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार ये इश्क वाला लव तो सुना है, ये प्लीज वाली स्माइल क्या होती है? And I improvised there. I spoke to the director and I was like, sir, I feel like I should say this line. This is my impulse. And he was like, go for it, go for it. And he announced it on set. Birdie has introduced one line, so he's going to improvise. So make sure you give a proper space. तो ये थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आती रहती है।
अगर आप मोमेंट में हो ना तो आपको आएगी आएगी. समटाइम्स आई नो, चाहे कोई भी इंसान हो, राशि आप भी खुद हो, आपको भी अपने बारे में लगता होगा कि यार आई एम टू विटी, क्योंकि आपका दिमाग चलता होगा. आप इतने सारे इंटरव्यूज लेती होंगी और एकदम से आपको एक आती होगी, एक विटी लाइन आती होगी, बोलने का मन करता होगा कि यार आई कैन जस्ट क्रैक जोक ऑन दिस. तो ऐसा होता है व्हेन पीपल आर क्रिएटिव, दे आर देयर प्रेजेंट इन अ मोमेंट, they come up with great things always. Yeah, I so believe what he's saying because if you're in the moment and in the character and you're feeling the character, then definitely the emotions will lead you to a better space out there. This is totally wonderful, Nishant. Okay, आप मुझे बताओ, what are your upcoming projects? What are you looking forward to? 2024 is the year of Venus, they say. It's the year of art. So let's hear. So in March, one web series called Murders in Mahim, it is about to release, and I'm playing negative lead there. It's a Viacom's project. And in the second half, Stardom, Aryan Khan's debut series, it is about to be releasing in second half of this year. So these are the two projects right now I have in my hands, and let's see. With your best wishes, I'll grab more projects and I can surprise you guys there. And we are sure there is a bright future ahead because you're focused. And while talking to you, I can feel because I think this is where education helps. Honestly, because you learn the discipline, you learn to be disciplined. This is absolutely wonderful, Nishant. अच्छा आप मुझे बताओ that how do you approach your duties as an actor? Okay, and tell us about the challenges. इतना कोई आसान तो नहीं होगा जितना लोग सोचते हैं कि हाँ गुड लुकिंग है, टॉल है, एजुकेटेड है, बोलना आता है, बट वो वहां तक नहीं होता सिर्फ, ये तो मुझे पता है. लेट्स से अबाउट योर चैलेंजेस एंड हाउ यू फॉट देम. So इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से. So all the people out there, those who are listening to our podcast, for them, let's say if you guys want to pursue anything, be it any degree, be it any skill, or be it let's say any sport, what exactly you guys do? If you're pursuing sports, आपके कोच क्या बोलते हैं आपको? ड्रिलिंग करने के लिए बोलते हैं ना. It seems very boring, but आप करते हैं. Same thing if you're pursuing let's say any degree also. When you're preparing for any test, what do you do? आप mock test solve करते हो ना बैठ के. पहले आप theory को learn करोगे, concepts को अच्छे से करोगे, then you do mock test. So similarly, जब आप किसी भी art form को pursue करने की कोशिश कर रहे हो, you have to work on your craft. अब यहाँ पे craft क्या हो सकता है? In acting, your product is your body. So what you're doing is you are making a product. आप अपने फिजिक को बना रहे हो, तो फिजिक अब वो जरूरी नहीं होता कि फिजिक बना रहा है मतलब वो एस्थेटिकली गुड ही होता है. कल को अगर मेरे को प्ले करना है एक ऐसा बंदा who is fat, he is in 30s and he is very lazy, he works in the office till late 11 and he eats there on his seat only, तो मेरी शायद तोंद आ सकती है ना, तो मुझे उस पर भी काम करना पड़ सकता है. प्लस साथ ही साथ आपको अपने साइकी पे भी काम करना होता है, तो ये चीज भी करनी है. सो नाउ व्हेन यू आर हैविंग अ कैरेक्टर, यू नीड टू वर्क ऑन फिजिकलिटीज, उसके वोकल पे काम करना पड़ता है, ये सब चीजों पे काम करना है. अब बात यह है कि आप एज एन एक्टर, आप क्या हो, एक तरह के पात्र हो ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ भरा जाएगा, तो आपको हमेशा एक एम्प्टी ग्लास की तरह रहना है, खाली, हमेशा खाली. तो खाली कैसे रह सकते हो आप? खाली रहने के लिए ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ अपने एक्सप्लोर करिए चीजों को कि मुझे किन चीजों पे रिएक्शन आता है. आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा. आप जब जानेंगे तभी आप खुद खाली भी रह पाएंगे, दूसरी चीजों को एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे कि ठीक है यार ये चीज कैसे मेरे को अपने अंदर लेनी है. आपको पता है ना कि आपकी लिमिटेशन क्या है. सो अगर मैं बात करूं एज एन एक्टर, मेरी ड्यूटीज क्या क्या हो सकती हैं. सो मेरी ड्यूटीज होती हैं कैसे मेरे सेंसेस सही काम करने चाहिए. मेरे को मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी नाक, कुछ सुन भी रहा हूँ तो उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है ना. भले उसका डायलॉग नहीं है, उसकी कोई लाइन नहीं है, बट मेरी नाक तो रिएक्ट कर सकती है ना. दिस इज व्हाट वी वांट लाइफ ऑन स्क्रीन. तो आपको क्या है, अपने सेंसेस पे काम करना है. अपने आवाज पे काम करने के लिए आई डू सम वोकल वार्म अप्स इन द मॉर्निंग.
मेडिटेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज थॉट प्रोसेस, बिल्कुल आपको क्या चाहिए, फोकस चाहिए ना सामने वाले कैरेक्टर पे। जब भी आप कोई भी सीन कर रहे हैं, अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान राशि की तरफ है, मेरा ध्यान पड़ोस में नहीं है। पड़ोस के डिस्ट्रैक्शन मेरे अटेंशन को लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, और मैं उनको शायद नोटिस भी करूंगा, लेकिन वापस से मेरा ध्यान किस पे आएगा, मेरा ध्यान जाएगा राशि पे। सो आपको इन चीजों पे बहुत काम करना है। सो इसके लिए आपको क्या, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको बस उसको नोटिस करना है, आपके साथ जो डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन वापस से आप इधर आ गए। सो मेडिटेशन हो गया, वोकल वार्म अप्स हो गए, और आपके सेंसेस पे आपको काम करना है। सो ये सारी चीजें जिन पे मैं रेगुलरली काम करता रहता हूँ। प्लस एक जो चीज है जो मैंने अभी लेटली इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने जो डेली, मेरा जो करिकुलम है, सो आई कॉल इट अ करिकुलम बिकॉज आई एम स्टिल परस्यूइंग इट, आई एम परस्यूइंग एक्टिंग। तो मेरे लिए वो करिकुलम ही है, तो मैं अपने करिकुलम में मैंने फ्लेक्सिबिलिटी को भी अभी डाला, इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, दे आर नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिबल, और मेरी बॉडी इस वक्त उस चीज को अलाउ नहीं करती है, तो आई नीड टू ट्रेन देयर अ बिट। This is, so much of clarity. This is, I'm sure you will be a very big superstar one day because you exactly have clarity in your mind कि मेरे को ये है और मेरी ये कमी है और मुझे यहाँ वर्क करना है. Again, I would say education is something which helps you develop that. This is, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, मेरी माँ भी मुझसे पूछती है कि फिर तूने आईआईटी क्यों किया। मैंने कहा भाई, पहले उस वक्त मेरे सामने एक गोल था, मैंने आईआईटी कर लिया। उस एजुकेशन से इतना समझ में आ गया है कि मैं अब जो चीज फील कर रहा हूँ, आई कैन आर्टिकुलेट देम वेल। बिकॉज अगर आप आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे, तो आप सामने वाले को भी नहीं बता सकते, ना ही आप अपने आप को बता सकते हो। नहीं तो अब क्या देखते हैं हम लोग, काफी सारे लोग जो कि मिड 20s में हैं या लेट 20s में आ गए हैं, दे आर स्टिल कंफ्यूज। उनको पता नहीं है कि अपनी लाइफ से वो लोग चाहते क्या है, वो क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। अगर वो नहीं होगी तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। आपको बस हमेशा ही चल रहा है कि यार मैं जॉब छोड़ दूं, मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ, स्टार्टअप नहीं यार, अच्छा शादी की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मेरे को होता है शादी को लेके, लोग अपने पार्टनर को लेके, जिसको वो डेट भी करे ना, उसको लेके भी वो लोग श्योर नहीं है कि उससे शादी करनी है नहीं करनी है। किस स्टेट ऑफ माइंड में है लोग। तो आई थिंक लोगों को क्लैरिटी चाहिए। आप जितना अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़िए, कोई हार्मफुल चीज नहीं है, ये आपको एज अ पर्सन ग्रो ही करवाएगी। तो बेस्ट है आप लोग पढ़िए। और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप देखें, दे आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऐसा है तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको फिर एग्जैक्टली कॉल लेना आएगा। तो वो चीज भी एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन सिखा देगी, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देगी। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये करना है और यही कॉल लेना पड़ेगा। सारे प्रोज एंड कॉन्स को आप इवेलुएट करोगे, देन यू विल फाइनली टेक अ कॉल। लेकिन कॉल तो ले पाओगे, तो वो बेस्ट पार्ट है। बड़ी ही ब्यूटीफुल बात इन्होंने बोली है. हमारे इधर एंटरप्रेन्योर बिजनेस कम्युनिटी में बोला जाता है पोस्ट परचेज डिप्रेशन. तो ज्यादातर लोग जो डिसीजन ले लेते हैं रिलेशनशिप्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाद में वो खुशी नहीं होते हैं. वो परचेज तो कर लेते हैं उस चीज को, बट लेटर ऑन दे ऑल द टाइम क्रिबिंग, एंड वहीं से पता चल जाता है कि क्लैरिटी की कमी है कि क्या चाहिए जीवन में. दे डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट वेयर दे हेडिंग टू. सो मैं हमेशा Rashi, I am just interrupting you here because of मेरे वही ना impulses आ रहे हैं. As an actor, you have a lot of impulses, and मुझे 5 साल लगे इसको ट्रेन करने में कि I need to just let these impulses out, जाने देने. सब impulse क्या आया, अब बात आई थी कि रिलेशनशिप में चले आते हैं, and then they regret on those decisions. अब इसमें मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ, I can share the template with people out there. आप क्या कर सकते हैं, आप ना एक छोटी सी वो बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू सीक इन योर पार्टनर। ठीक है, वो आपने बना लिया, सो ऑब्वियसली आप वही चीजें डालेंगे जो चीज आपको पसंद है। नाउ ऑन द अदर हैंड, यू राइट डाउन दोस थिंग्स यू लिटरली कांट टॉलरेट। ठीक है, अब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, मिलिए आप उससे,
अब आपको समझ में आएगा कि उस इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। अगर उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सो इट्स अ स्ट्रेट नो। वाई? वाई? आई टेल यू। जो चीज आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं आज, जस्ट टू बी नाइस, और जिस तरीके से हम लोग को ट्रेन किया गया है इस सोसाइटी में रहने के लिए बाय आवर पेरेंट्स और मे बी बाय आवर टीचर्स, सो दैट इज अ लर्न्ड बिहेवियर। वी विल ऑलवेज बी नाइस टू द अदर पीपल, ऑलवेज। पहली बार में तो आप लोग क्या करेंगे, चल कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये दो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसे सिखा दूंगा। लेकिन हुआ क्या? सो राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दोस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट यू कांट टॉलरेट, यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो क्या होता है, एक दिन जब साल हो गए, 2 साल हो गए, आप एक दिन बस्ट करेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज टिकता नहीं है। Whereas there could be certain characteristics where you can adjust, यानी अगर वो चीज हो रही है तो भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो देयर यू कैन एडजस्ट। सो एडजस्ट, तो रिलेशनशिप में आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू कांट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज की कोई लाइफ नहीं है, वो खत्म होना ही हो रहा है। एडजस्टमेंट तब भी चल जाते हैं। तो ये चीज की क्लैरिटी आई थिंक मेरे को मेरे थर्ड ईयर में मिल गई थी, व्हेन आई वाज डेटिंग समवन। मेरे को क्लैरिटी मिल गई थी कि यार इसके बियॉन्ड नहीं, जो चीज एक कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे को नहीं चाहिए, आई कांट टॉलरेट, अगर वो है उस बंदे में, उस बंदी में, सो आई कांट टॉलरेट। Yeah, rightly said, and आपको पता है निशांत, most of the Indians, Indian, I think, women, they lack clarity on what kind of a man they want. उनको चीजों का तो पता होता है, लेकिन उनको जीवन कैसा चाहिए ये बहुत बाद में जाके पता चलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा ठीक आपने। है, मेन को तो समझ में आता है कि उनका टिक 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 ये पता है, ये होना चाहिए, लेकिन विमेन, बिकॉज दे आर इमोशंस ड्रिवन मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको नहीं पता होता है। Since we are talking about girlfriends and boyfriends and shadis, I want to ask, are you in a relationship with someone? Sorry, but I need to ask this. मैम, आई एम मैरिड। सो आई डेटेड, हाँ, सो बिफोर गेटिंग मैरिड टू माय वाइफ, I dated her for a good 5 years, and post that we got married back in 2019. Oh, and you look so young. You लगता ही नहीं है कि आप शादीशुदा हो। खैर, हमारी गलती, हमने रिसर्च नहीं की, बट ठीक है। वो इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि हमने, आई थिंक, सही एज में, जो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सही एज होती है, उसमें शादी कर ली थी। एंड आई थैंक टू माय वाइफ ओनली फॉर दिस, बिकॉज वी बोथ वर ऑफ सेम एज, शी वाज कमिंग आउट ऑफ हर एज। उनके पेरेंट्स ने बोला, उसने अपने पेरेंट्स को बताया, बात हुई और शादी हो गई। और मैं उन लोगों में से हूँ जिसको ये चीज नहीं सुननी है, ना ही कहनी है कि पहले ना थोड़ा सा करियर स्टेबल हो जाए उसके बाद शादी करूंगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको लाइफ में अच्छे लोग मिले हैं ना, तो बस उनको जोड़ते चलो, उनको मत जाने दो। आपको लगता है मेरा करियर, अगर शादी ना होती, मेरा करियर तब भी बन जाता, बिकॉज एक टेम्पलेट सेट है ना, करियर तब भी बनता, थोड़ा जल्दी बन जाता शायद, बट बनता ना। क्या मेरे को मेरी वाइफ मिलती? क्या मेरे को वही प्यार मिलता जो मुझे चाहिए था? अगर कोई तीसरा बंदा मुझे कोई मिलती, क्या उसमें सेम वाइब मुझे मिलती? नहीं मिलती, कोई श्योरिटी नहीं थी। तो मेरा मानना हमेशा से यह है कि अगर आपको अच्छे लोग मिले हैं तो जोड़ के चलो और आगे बढ़ते चलो। आपको लगता है बर्डन है, ये आपका माइंड सेट है। आज के टाइम में कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एवरीवन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सब काम कर रहे हैं ना। सो आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि आपकी वाइफ आपके ऊपर बर्डन बनेगी? टू इंडिविजुअल्स, दे कैन स्टे टुगेदर, दैट्स इट। शादी है ना, नाउ दे दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर, वो अपना निभाते रहेंगे ना। लेकिन ये कहाँ से आपने प्रेशर बिल्ड कर दिया कि यार नहीं, यार शादी होने के बाद ना बहुत सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं यार। क्या लाइबिलिटीज आएंगी? कुछ भी नहीं आएंगी, इट्स अ नॉर्मल लाइफ। रादर देन थिंकिंग दैट वेज, यू कैन थिंक initially two people, those who used to love each other a lot, they were staying separated, now they are staying together. That's the happiest part. शादी के बाद इतना हो गया ना, और क्या चाहिए आपको?
नाइस नाइस। मुझे आप बताओ, यू बिलोंग टू भरतपुर, दैट्स अ वेरी स्मॉल सिटी। तो आपकी बात करने से आपके संस्कार तो छोटे शहर के ही लगते हैं, बिकॉज वहाँ के लोग बहुत हम्बल होते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दे गेट टू देव ग्रोन फ्रॉम वेरी स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ्स, और वो धीरे धीरे बहुत एक्सपोजर पे आते हैं, तो उनका जो कोर होता है ना, तो जैसे मैं लखनऊ की हूँ और मैं दिल्ली आई और फिर मैंने दुनिया देखी, तो हम हमें बड़े अपने जॉइंट फैमिलीज में, छोटे घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मैं बोलूँगी बहुत सिक्योर जिंदगी मिलती है, बहुत फोकस्ड होते हैं। तो मुझे बताओ, जब आप जाते हो भरतपुर, अभी आपको क्या पसंद है वहां जाके करना? नाउ यूर अ स्टार, सो लेट्स हियर। अभी मुझे जाके सबसे पहले तो अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें बुलाना पसंद है। सबसे पहले जाऊंगा उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ में घंटों बिता के आऊंगा। घर में रूल होता है कि बाय 7:30 यू शुड बी होम, हमारे घर का रूल है। लेकिन अभी थोड़ी सी लीनियंसी चल रही है मेरे साथ, तो आई एम अलाउड टू स्टे आउट लेट्स से गुड 10:30 और समटाइम्स 11 ऑल्सो। सो आई स्पेंड टाइम विद देम। एंड भरतपुर फेमस है वहाँ की चाट के लिए। सो मुझे पानी पूरी, समोसा, इमरती, देन मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है हमारे यहाँ पे, जलेबी कचौड़ी। सो जलेबी आपका डिजर्ट में चलेगा, और कचौड़ी के संग आपके संग आएगी आलू की सब्जी। सो मुझे मॉर्निंग में कुछ टाइम के लिए तो वो चाहिए, कॉन्स्टेंटली चाहिए, जितने दिनों में आओ वहां पे। तो ये चीजें करना पसंद है, और अभी भी आई थिंक मैं करूंगा ही। नाइस। आई थिंक सारे छोटे शहरों में जलेबी सुबह मिलती है हाँ, है ना? शाम को 4 बजे के बाद आपको सिर्फ इमरती मिलेगी, जलेबी मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। आई एग्री विद यू। या आगरा जाइए आप, आगरा में भी सुबह सुबह जलेबी मिलेगी। सुबह। शाम को जलेबी क्या होती है, और बॉम्बे अगर आप आएंगे तो यहाँ की जलेबी आपने खाई कभी? इट्स इट्स हॉरिबल। ये लोग कभी भी बना देते हैं, येलो कलर की होती है, हमारे यहाँ की जलेबी होती है क्रिस्पी। उनकी क्या होती है, उनकी ऐसे ऐसे लूज हो जाएगी, ये ऐसे लूज हो जाएगी, जलेबी खाने का मन ही नहीं करता है। I know, I know. So, while talking to you, I understand that why you are a different kind of a person. But what makes you a different actor? Let's hear. Very difficult question, यार. What makes me a different actor? Okay, so this is not unique, but out of 100 people, I can be one of those 5% people, those who focus on training a lot rather than being intuitive and very organic. I'm not one of those. I'm not क्या बोलते हैं ना कि पैदा ही एक्टर हुआ है, इसके अंदर वो है, मेरे अंदर वो नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज who would take calls based on the craft, not based on the first thought I had in my mind. No, I'm not one of those. तो उस मामले में मैं लकी नहीं हूँ। I say sometimes I'm not that lucky, but I trust my craft a lot, because I have given more than 100% to build my craft. So I'm exceptional that ways. And I think this is the, I would say ये एक मंत्रा होता है बहुत दूर तक जाने का, क्योंकि आपको क्राफ्ट, बिकॉज आप एक क्राफ्टमैन हो, आपको क्राफ्ट पता है, आपको आर्ट पता है, आर्ट कैसा होता है ये पता है। इट्स नॉट कि आपको बस मिल गया हो। दिस इज नाइस। ओके निशांत, what is your one special message to all those budding actors who are struggling in the industry and who want to be seen? Touch wood, you're lucky, you got a great, this thing, great cast. You got Hrithik Roshan, you got Deepika Padukone, you got Anil Kapoor ji, all those stars out there, Karan Grover. तो आप मुझे बताओ, आपका क्या एक सुझाव है उन लोगों के लिए? सो मेरी एक एडवाइस होगी सारे एक्टर्स के लिए जो भी बॉम्बे आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी बॉम्बे में हैं। सो आज ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, एक्टर है, एंड ही सॉ माय इंटरव्यू and he was like, hey, Nishant, since we both are trained in same institute, so मेरे को कुछ ना एक एक्टर फ्रेंड की तरह तुझसे कुछ एडवाइस चाहिए, और वही एडवाइस मैं बाकी लोगों को भी दूंगा।
कभी भी ना क्वेश्चन मत करो. क्वेश्चन एज इन क्वेश्चन करना अच्छी चीज होती है, लेकिन व्हेन यू आर लर्निंग एनी आर्ट फॉर्म, जस्ट डू नॉट क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्वेश्चन अ लॉट, यू गेट कंफ्यूज्ड एंड देन यू स्टे आउट ऑफ इट. देन यू थिंक कि नहीं यार, जो मेरा नेचुरल प्रोसेस है मैं वही करूंगा, वही मेरा बेटर है. उसमें क्या है कि उसमें फिर आप वही अपने इंस्टिंक्ट पे रह जाएंगे, आप खेल नहीं पाएंगे. यू विल नॉट बी वन ऑफ दोज हु कैन डू वन लाइन इन मल्टीपल वेज. नहीं कर पाओगे ना, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो. सो बेटर ऑप्शन ये है कि फोकस ऑन योर क्राफ्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज, डोंट आस्क क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, just be there, be present, and keep grasping, keep grasping. Post that, once you start having the basic knowledge, then try experimenting with all those available tools you have. Then see, then try to answer certain questions. Because अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट टाइम में एक वर्कशॉप कर रहा था, सेम वर्कशॉप रिपीट कर रहा था. मुझे एक लाइन मेरे फ्रेंड ने बोली थी, एंड सो पावरफुल, सो पावरफुल. आई टेल यू, एक मोमेंट को क्राफ्ट करने के लिए हमारे को पीछे की बैक स्टोरी बनानी पड़ती है बहुत सारी, करेक्ट. उसके बाद आपका अगला मोमेंट आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, जो भी हैं, हम लोग, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है उस इमोशन को लाने के लिए, सब कुछ करा है ना, तो हम लोग उसको उसको बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं. यानी भाव देने का मतलब क्या है कि उसको अपने दिल के करीब कर देते हैं, और वी कैरी ऑन विद दी सेम इमोशन थ्रू आउट दी सीन. एक्चुअली उस मोमेंट के बाद ही एक अगला मोमेंट भी आया था ना, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी नहीं. क्योंकि एक्टिंग में क्या है, लाइफ में क्या है, मोमेंट बाय मोमेंट वी नीड टू प्ले. अभी जैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई जस्ट गॉट अ कॉल ना, आई गॉट इरिटेटेड एंड आई कट इट. मैंने किया ना काम, उस इमोशन को मैंने इंपॉर्टेंस दी ना, उस मोमेंट को इंपॉर्टेंस दी मैंने. सो सेम चीज लोगों को यही करनी है, सारे लोगों को अपने. अगर आप लोग क्राफ्ट पे काम करेंगे, तो आप लोग हर मोमेंट में प्रेजेंट होना सीख पाएंगे. उतना ही आप लोग अपने नजदीक जाएंगे, उतनी आप बेहतर एक्टर बनेंगे. तो जितने आप बेहतर एक्टर बनेंगे, आप लोग खुश रहेंगे. सेकंड चीज, जो आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए, और ना ही क्रिबिंग, बिकॉज आई वांट ऑल दी एक्टर्स देयर, दे शुड नॉट क्रिब. क्योंकि क्रिबिंग एक ऐसा एक नेगेटिव लूप है, एक विशियस लूप है, जहां आपकी चीजें बिगड़ती बिगड़ती हैं. तो ये एक्टर्स लोगों के लिए भी काम आ सकता है, और बाकी दुनिया के लिए भी काम आ सकता है. सबसे पहले बात बताइए कि आप लोग हैं क्या, हम सब लोग हैं कौन, हम उस भगवान के बच्चे हैं ना. तो क्या अगर आप भगवान से पूछोगे कि आप कौन से बेटे को या कौन सी बेटी को पसंद करते हो, ज्यादा पसंद करते हो, क्या भगवान पिक कर सकता है क्या? नहीं पिक कर सकता, उसके लिए सब बराबर है. ठीक है. लेकिन अगर भगवान से पूछा जाए कि किसको ये चीज मिलनी चाहिए, तो भगवान शायद बोल सकता है. क्यों बोल सकता है? बिकॉज भगवान ने देखा होगा किसने ज्यादा मेहनत करी है. तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे, तो भगवान आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, भगवान हमारे साइड है, हमारे को सब कुछ मिल जाएगा, नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला है. हम लोग सब उसके हैं, वो हमारी साइड खड़ा हुआ है, हर बार खड़ा हुआ है, लेकिन वी नीड टू हेल्प आवरसेल्फ फर्स्ट. या ही सो राइट कि अगर आपको भगवान ही खिलाने लगेगा तो आप बीमार हो जाएंगे. खाना तो खुद ही पड़ता है. सो बिकॉज मुझे हमेशा ना निशांत एक सीन याद आता है कि पीपल हु लाइक टू बी स्पून फेड और पीपल हु लाइक टू बी कि मुझे पूछा जाए या मुझे करा जाए या मुझे खिलाया जाए, तो वो तो मरीज का काम होता है, मरीज को करते हैं. तो अगर आप बीमार हैं तो आप ये सब पालिए, और अगर आप चुस्त हैं और स्वस्थ हैं, देन आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक बिकॉज गॉड इज बाय योर साइड. एंड अल्टीमेटली तो आप ही को करना पड़ेगा. सो दिस इज नाइस. ओके, मुझे बताओ, एक तो ये सबसे बड़ा रिकग्निशन आपको अभी मिला है, आपने ये मूवी की है जिसमें आपका एक कैरेक्टर अलग से आया है, बर्डी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हिट इनटू द ब्रेन्स ऑफ पीपल. ये कौन है, ये कौन बंदा है, इज अ न्यू गाय. उसके अलावा और कौन से रिकग्निशंस अवार्ड्स आपको मिले हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है? एज एन एक्टर तो अभी इतने नहीं मिले हैं, ऑनेस्टली सेइंग. बट मेरे को काफी कुछ मिला है व्हेन आई वाज परस्यूइंग आईआईटी. तो उस वक्त मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिल गए हैं. सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, I was the fourth rank in Rajasthan there. Then I did some quiz also on world environment. I was the runner up there. So ये छोटे छोटे अवार्ड्स हैं, ये काफी मिले हैं, बट एज एन एक्टर अभी नहीं मिला है बहुत कुछ. और वो हासिल करना है, वो भूख अभी भी है बहुत ज्यादा. और
आई थिंक शायद मैं कई बार बोलता हूँ, बिकॉज आई कीप टॉकिंग टू माई वाइफ अ लॉट एंड आई आई से कि पता नहीं यार मुझे सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। तो ये चीज लोग बोलते हैं यार, मैंने काफी स्पिरिचुअल चीजें सुनी है, पढ़ी हैं, लोग बोलते हैं कि यू नीड टू फील कंटेन, बट अभी अभी वो एक्सपीरियंस नहीं आया मुझे, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। कोई भी एक्साइटिंग या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर या कोई ऐसे सुनेंगे ना कि आपको इतने अवार्ड्स मिले और आपकी फोर्थ रैंक थी, टॉप रैंक्स थी, तो वो पता है क्या बोलेंगे कि ये क्या कर लिया इस लड़के ने यार, इतना इंटेलिजेंट था, एक्टर बन गया। बट दे डोंट नो कि एक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है साइंस। बिल्कुल नहीं है। एंड इतना फोकस, मतलब मैं खुद भावुक डांस सीखती हूँ और मुझे पता है कि एक डांस का, नृत्य का भी भाव निकालना कितना डिफिकल्ट होता है, यू नो। मैम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको अपने एक एक बॉडी पार्ट, एक एक मसल पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैं अभी किसी भी इंसान को बोलूंगा ना कि यू जस्ट गो एंड मूव दिस पर्टिकुलर मसल, नहीं कर पाएंगे। whereas नॉर्मल नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन यू कैन डू, but when it comes to just moving a muscle, it's very difficult. So pursuing any art form is a very difficult thing. साइंस परस्यू करना मेरे लिए बहुत आसान था। आज भी मैं वो डिफिकल्ट सम्स कर सकता हूँ जो मैंने शायद अपने इंजीनियरिंग में किए हों या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए किए हों। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि निशांत एक परफॉर्मेंस देख के आए हैं आज हम, लेट आई एम गिविंग यू अ मंथ, लेट्स ट्राई एंड डू दैट एक्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। कई लोग सालों लगाते हैं एक परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। आप परफॉर्मेंस कह रहे हो, जब हमने पॉडकास्ट आज से 6 साल पहले स्टार्ट किया था तो लोग कैमरा में खुद को नहीं देख पाते थे। हाँ, राइट, और आज तक आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल वी रीच आउट टू, वो कहते हैं कि मैम आप ऑडियो फोन पे ले लो इंटरव्यू। तो मैं उनको बोलती हूँ यार फोन पे कैसे ले लूँ मैं, आपका फोन पे लेने का एक अलग सिस्टम है, यू नो। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट फेस द कैमरा, तो एक्टिंग करना तो एक अलग ही लेवल की आर्ट है, यू नो। तो दिस इज नाइस। Nishant Khanduja, affectionately known as Khanduja, is a prominent figure in the industry. मैं prominent इसलिए बोलूंगी क्योंकि he got a great break and he did justice to the character. That's why I'm saying prominent. And he's open to influencer marketing campaigns. He's open to a lot and lot of good work. Get in touch with him. His details, his email ID is available in the video. आप उनको लिख सकते हैं अगर आप उनके साथ कुछ collaborations करना चाहते हैं. And also, my last word, go ahead and watch Fighter in the cinemas. He's done amazing work with the other stars. निशांत आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए। थैंक्स अ लॉट राशि फॉर हैविंग मी हियर। एंड इन द बिगिनिंग एज आई सेड, यू आर टू स्वीट मैन। थैंक यू। इतना थैंक यू। इतना इतना प्रेशियस कोई फील नहीं कराता। नहीं, आप प्रेशियस हो। क्यों, मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको, आपके काम की निशान बहुत मतलब इतनी छोटी यंग एज में अगर आप, you are seen with someone who's taken years to achieve something and you got it. You know why? What is the secret mantra? I was doing a lot of research on you while we were developing your questions. What I got one thing about you, that हम इतने स्टार्स को रीच आउट करते हैं, इतनी जल्दी कोई जवाब नहीं देता। आप इतने हम्बल हो, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, एंड आप बहुत दूर तक जाओगे। आजकल लोगों का रवैया क्या है, जवाब नहीं देने से लगता है उनकी इंपॉर्टेंस बनेगी। मुझे ऐसा लगता है, इन माय करियर ऑफ 30 years, अगर आप सही समय पे सही जवाब देते हो किसी को और राइट बात बता देते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस 20 गुना बढ़ जाती है। यू नो द यंगस्टर्स दीज डे हैव, आप व्हाट्सएप पे किसी को रीच आउट करिए वो जवाब ही नहीं देते हैं, अगले दिन कहेंगे दिखाएंगे बहुत बिजी है। बिजी नहीं होते लोग, लेकिन रवैये में दिक्कत है। लेकिन आप टच वुड इसलिए आगे जाओगे क्योंकि आप एक तो एजुकेटेड हो, आपको पता है मेरी वैल्यू के साथ दूसरे की भी वैल्यू है। इसीलिए आई थिंक दैट इज वन ऑफ अ वेरी वेरी बिग, वेरी यू अप्रोचेबल। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन, क्योंकि आप दूसरों के लिए रास्ता खोल रहे हो ना, तो आपका रास्ता तो अपने आप खुल जाएगा। ये हमेशा जिंदगी में मैं इसको फॉलो करती हूँ कि जो लोग दूसरों को तंग नहीं करते उनको कोई तंग नहीं करता, यू नो। ये तो पूछना ही है। और मैं कई बार ये भी सोचता रहता हूँ कि
अगर तुम दूसरों के रास्ते में रोशनी करोगे तो तुम्हारे रास्ते में भी रोशनी हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्द मिलेंगे। और आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स, रीच आउट टू हिम फॉर कोलैबोरेशन, ही इज डूइंग ग्रेट वर्क आउट देयर। थैंक यू निशांत। Thanks a lot, Raj.